Many congratulations, madam. Long awaited, and you are back now. No, thank you so much. I'm very happy to be part of this web series. I'm not really back. It's a series that I'm playing a small part, but I'm playing a very exciting character. So I'm happy. What made you sign this film, and come on a web series? Actually, it was Mr. Kapil Sharma who was responsible for this. We have had a very long association since Bandhan Kache Dhagon Ka, and then we worked in Don't Know Why 1, Don't Know Why 2. तो जब इन्होंने मुझे जोआना का रोल सुनाया तो it's a fascinating character. मुझसे बहुत हटके है, अलग है. Joanna is a little crazy, funny. So I love the character. Ask anyone else. And ma'am, you're being the role model for any aspiring actors. So many fresh faces are working with you. So, किस type का experience रहा? Any tips you give to them acting? No. I think आजकल की लड़कियां बहुत मंजे हुए हैं. उनको कोई tips की जरूरत बिल्कुल नहीं है. They know their work, they know their craft, and I think the director was pretty much responsible for all their work. अनिल जी, आप ही लेके आए जीनत जी को इस फिल्म में, क्योंकि आप ही का प्रभाव ज़्यादा रहा होगा. नहीं, मेरा बिल्कुल प्रभाव जीनत जी पे का प्रभाव मुझ पर रहा है, बल्कि मेरा इन पर कोई प्रभाव नहीं रहा है. मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा था जब मैंने इनके बंधन कच्चे धागों की थी. ये तो कपिल का आइडिया था. कपिल स्टार्टेड विद दिस वेब सीरीज़ एंड कपिल ने ऑलरेडी डोंट नो व्हाई में काम किया था इनके संग. तो फिर ये जीनत जी के पास गया और जीनत said yes because she liked the Joanna character. What's your role about in the film? It's a very zingy, zany character. Completely the opposite of what I am. She has जैसे जैनिस और जसबीर में एक वजह थी कि जसबीर the way she was. वैसे Joanna, there's a big reason why she is the way she is. She's loud, she's over the top, she wants to be involved in everything, everywhere. She's fun, she likes to go on dates. She's single, so she goes on dates every now and then. और उसका हर डेट में बहुत गड़बड़ हो जाता है. तो Very interesting and funny character. It's a funny character, yeah. Actually, the entire process is not different at all. I think the person to speak to is the director here. Why don't you address this question to him? How is it different from Bollywood? I think it's जीनत जी कितना एक डायरेक्टर्स एक्ट्रेस है. कहते हैं कि एक्ट्रेस जीनत जी कितना डायरेक्टर्स एक्ट्रेस. Totally director's actor. Whatever जो एग्जैक्ट करेक्टर है, ये एकदम उसके अंदर अपने अंदर ये ले लेती हैं. और इनके एक बहुत स्पेशल है कि हमेशा कम से कम अभी भी 15 दिन पहले she takes her script and she especially again she writes in her own hand. That is a very unique thing. कपिल, आपको कैमरे में देखना है क्योंकि you have to look in the camera and then speak. So complete your sentence again, sir, please. Zeerat ji is a totally director's actor and she really still works so hard on it and she's like an inspiration for us. And इनका स्पेशल ये है कि शूटिंग के अभी भी 15 दिन पहले ये स्क्रिप्ट ले लेती हैं. हर डायलॉग्स को फिर से अपने हाथ से लिखती है. That's a special secret of her. मैम, आपको क्या लगता है जो आजकल इतनी सारी एक्ट्रेसेस आ रही हैं, how the time has changed from back in the 80s, 90s or 70s? This is an industry, and an industry is always growing, always changing. But हमारे यहाँ phenomenal talent है. The girls are very talented. They are beautiful. I always say this. Our girls are beautiful. They know to dance. They know to fight. They know how to present themselves. I think Indian ladies are amongst the most beautiful girls in the world. Would you agree? मैं एक बात कहना चाहूँगा जीनत जी के बारे में. जीनत अमान वो एक चेंज थी जो बॉलीवुड में अपने आप लेके आई थी. वो चेंज ही आज तक चल रहा है. उस चेंज से कुछ भी ज्यादा नहीं है. जो जीनत लेके आई थी 70s में, उसके आगे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. वो अपने आप में इतना बड़ा चेंज था. जीनत अमान का जो किरदार है आज भारत में जितनी लड़कियां, यंग लड़कियां भी हैं, मैंने बोला जीनत अमान वो एक्ट्रेस है जिसने हिंदुस्तान की लड़कियों को जीन्स पहनना सिखाया. आज अगर कोई भी लड़की जीन्स में है तो वो सिर्फ जीनत जी की मेहरबानी है. आज कोई भी लड़की मॉडर्न है तो वो सिर्फ जीनत जी की मेहरबानी है, क्योंकि इनके आगे कोई चेंज आया ही नहीं है. जीनत अमान द लास्ट चेंज ऑफ दिस बॉलीवुड. आपके अपने आप में किस एक्ट्रेस में देखते हैं अपने आप को? आजकल की किस एक्ट्रेस में अपने आप की छवि देखती हैं?
किसी ने पूछा कि अगर कोई बायोपिक आपका करेगा तो आप कौन से एक्ट्रेस को आप चाहोगे कि आपका बायोपिक करे, तो आई वुड से प्रियंका चोपड़ा। मैम इस मुकाम पे पहुंचने के बाद एक कोई ख्वाहिश है जो रह गई है जो बॉलीवुड से आपकी, ऐसी कोई कोई ख्वाहिश फिल्म कोई रोल अदा करना चाहती हूँ अभी? आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड, हैप्पी। मैम लॉट्स ऑफ पीपल ऑल्सो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ कुछ लिखना चाहेंगी आप, लाइक अपनी जीवनी या कुछ ऐसी बायोग्राफी ऑटोग्राफी? जी हो सकता है, ये हो सकता है आगे जाकर के मैं कुछ लिखूं। तो मैडम इसका एलाबोरेट करिए ना, कब हो नहीं, सकता है? जब लिखूंगी तब एलाबोरेट करूंगी। क्यों करें? मैडम एक सवाल है, जिस तरह से बॉलीवुड में लिरिक्स यूज की जाती है महिलाओं को लेके हमको किस तरह से लिरिक्स यूज करना चाहिए, मॉडिफिकेशन यूज किया जाता है? I think it's irrelevant. Not on this platform. वो जब एक विमेन एम्पावरमेंट का प्लेटफॉर्म होगा ना, तब ये बात। आप विमेन एम्पावरमेंट से जाने जाते हैं। अभी यहाँ हम वेब सीरीज के बारे में बात मैम लास्ट 2 क्वेश्चंस। अगर आपको इस समय के किसी एक्टर के साथ काम करना हो अमंग द न्यू गाइज, हु इट विल बी? See, it depends. I've never been an actor's actress. I've always been a director's actress. So to me, it will matter who is my director and what is the role I am playing. बाकी एक्टर कोई भी। फिर भी कोई पसंद आजकल के See, different actors are good in different roles. Different actors are good in different roles. Hrithik was amazing in Jodha Akbar. पुरानी हो गई, but look at the Akbar he played. Shah Rukh Khan was very good in Raees, and Salman is always entertaining. And of course, Amir is, you cannot, he is so perfect in everything that he does. So it's different actors in different roles. So it depends on the director, it depends on the script, and it depends on the role. आजकल के जो कलेक्शंस होते हैं वो भी बहुत एनॉर्मस हो गए हैं फिल्म के। जी, वी जी। सॉ बाहुबली। व्हाट यू से, आप क्या कहना चाहोगे आजकल के जो नए लैंडमार्क और ऐतिहासिक फिल्में कलेक्शंस के मामले में भी होने लगी? It's wonderful. It is revenue being generated for people who have worked so hard. See, people work very hard. लोगों को पता नहीं चलता कि कितनी मेहनत गई है एक प्रोजेक्ट में। लोग दिल और दिमाग और जान से काम करते हैं, तो जब ये सफलता है ना पाते हैं तो बहुत खूबसूरत और अच्छी बात है। मैम एक लास्ट चीज पूछूं, अभिषेक बच्चन आपको बहुत याद करते हैं ना, कि टेल्स लॉट्स ऑफ फॉन्ड मेमोरीज विद यू। I remember him as this cute little boy used to hold his mother's pallo and hide and peek at me behind his mother's pallo. And I have very fond memories of him as a child. Gee. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Sonali, it's good to see you so long. So how was the experience working for a web series? Okay, yeah, it's my first web series, Love Life and Screw Ups. So, and the team is fantastic. Actually, इनके साथ मैंने एक और मूवी की है, Paranormal. So through that, I got to know कपिल शर्मा और जो उनके ब्रदर है संजय शर्मा और उनके जो भाई है अनिल शर्मा ऑफ कोर्स। अभी मैं उनके साथ I know the entire family. So experience it was very nice क्योंकि 9 एपिसोड में से 5 एपिसोड्स मेरे हैं। सो ऑब्वियसली आई एम वन ऑफ द लीड्स और जो कैरेक्टर मुझे दिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चैलेंजिंग है, मतलब बहुत ऑपोजिट है। सॉरी इट्स अ लिटिल स्क्रू अप। सो जो मेरा कैरेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग भी है, सॉफ्ट भी है, अच्छी भी है, बुरी भी है, विंडिक्टिव भी है, शी इज नाइस ऑल्सो, मतलब काफ़ी शेड्स है। आई वुड से इट्स अ मिक्स ऑफ एवरी शेड और काफ़ी मज़ा आया काम करके। अभी हम स्क्रीनिंग के लिए जाने वाले हैं, सो लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स मिलता है। आई हैव ट्राइड कि मैं अच्छा काम करूँ, सो आई लीव इट अप टू द ऑडियंस। And how was the experience working with Zinat? विद जीनत जी काफ़ी मेरे सीन्स कम थे क्योंकि शी इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट, वो कनेक्टेड है हमारे सारे कैरेक्टर्स के साथ। लेकिन जीनत जी का एक फेमस इंसिडेंट मैं बताना चाहती हूँ। जो मेरी पहली मूवी थी दी एक्सपोज, उसमें मैंने सत्यम शिवम सुंदरम एक सीन मैंने उनका किया था जो काफ़ी फेमस है, द फेमस राज कपूर द वाइट साड़ी सीन, वो काफ़ी फेमस है, तो वो उनसे ही था। सो वो एक कनेक्शन है एंड आई वुड लाइक टू टेल हर कि मैंने उनका वो प्ले किया था। एंड आई लव जीनत जी, शी इज़
she's like I just love her. I mean everyone loves her. Like वो उनके टाइम पे बहुत ही सेक्सी थी, very glamorous, very talented, and it's nice कि उनके साथ काम करने का मौका मिला. So आपने टीवी भी किया, बॉलीवुड भी किया, now with the web series. So what difference and what exciting you feel in web series? एक्चुअली मैंने 2 आइटम सॉन्ग्स भी अभी किए हैं. Yes, I know one is for Marathi. यस मैंने एक किया ग्रेट ग्रैंड मस्ती के लिए, और दूसरी अभी मैंने मराठी मूवी के लिए किया है. टाइटल है हीरो, जो जून में रिलीज है. उसका प्रमोशन भी अभी शुरू होगा. अभी यू नो थोड़ा सा लिटिल मई जून जुलाई थोड़ा सा डेड सीजन होता है, बट जून में आई थिंक रिलीज है मराठी फिल्म का. सो एक्चुअली मुझे डिफरेंट चीज़ें करना पसंद है, और मुझे टीवी यस ऑफर होता ही रहता है. काफ़ी सारे दूसरे रियलिटी शोज भी ऑफर हुए, बट आई थिंक एक शो कर लिया इनफ, एंड आई थिंक माय फोकस इज़ बॉलीवुड, एंड एनीथिंग रिलेटेड टू बॉलीवुड मैं करूँगी. और जहाँ पे भी मुझे यू नो अच्छी चीज़ मिले, कुछ समथिंग डिफरेंट, समथिंग टू ट्राई, समथिंग टू यू नो एक्सपीरियंस, आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि मुझे किक लगती है एनीथिंग न्यू. इट शुड बी एक्साइटिंग. सो या अभी वेब सीरीज, इसके बाद आइटम सॉन्ग, इसके बाद पता नहीं व्हाट इज नेक्स्ट. आई थिंक हॉलीवुड. डायंड्रा आई नो हर, लाइक हम लोग साथ में थे बिग बॉस 8 में, तो तभी हमारा इक्वेशन इतना अच्छा नहीं था. अभी मुझे पता नहीं, आई एम स्टिल लास्ट, बट या वी ग्रीटेड लाइक या एवरीथिंग इज कॉर्डियल. अभी हो गई चीज़. या इट्स नाइस वर्किंग विथ हर ऑल्सो. आई थिंक उनकी भी फर्स्ट वेब सीरीज है, सो आई विश हर लक. और देखते हैं अभी. ओके, आई वुड लाइक टू से टू माई फैंस के हमारी जो नई मैं कहाँ पे देखूँ, आई एम टू कंफ्यूज. ओके, सो माई मैसेज टू माई फैंस इज के प्लीज वॉच आवर वेब सीरीज लव लाइफ एंड स्क्रू अप्स, जो 1 सेकंड रिलीज डेट में भूल गई, चेंज हो गई है रिलीज डेट 15 मई ना. ओके सॉरी सर. हाय गाइस, जो मेरा मैसेज है मेरे फैंस के लिए कि हमारी जो नई वेब सीरीज आ रही है लव लाइफ एंड स्क्रू अप्स, जो रिलीज हो रही है 15 मई को. आई एम सो सॉरी. टेक 100. टू हॉट. ओके. हाय गाइस, माय मैसेज टू माय फैंस इज कि जो हमारी नई वेब सीरीज रिलीज हो रही है लव लाइफ एंड स्क्रू अप्स, विच इज रिलीजिंग ऑन 15th May, एंड इट्स रिलीजिंग ऑन ओम डिजिटल चैनल. सो प्लीज वॉच इट एंड सब्सक्राइब टू ओम डिजिटल. और प्लीज लव, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेब सीरीज बनी है जो रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है. मतलब यू नो 9 एपिसोड्स है और 9 डिफरेंट रिलेशनशिप्स, जो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती. फॉर दैट यू हैव टू वॉच इट. थैंक यू.